اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، ریاست بنگال سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، SIR کو لے کر آپ سب جانتے ہیں کہ 70 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا نام ووٹنگ لسٹ سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن نے مل کر کاٹ دیا، اور کن کے نام کٹے ہیں یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طریقے سے SIR کے شڑینتر کے ذریعے سے بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن جیتنے کا پھنڈا استعمال کر رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بنگال SIR پر سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آیا، جس کا ممتا دیدی نے سواگت کیا، استقبال کیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ ٹریبونل سے کلین چٹ ملنے پر لوگ ووٹ دے سکیں گے۔ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کہ اگر ٹریبونل سے کلین چٹ مل گئی تو پھر وہ آدمی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بنگال SIR کو لے کر سپریم کورٹ نے جو اہم فیصلہ دیا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور لاکھوں لوگوں کی ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی اہم خبر، جی ہاں، گزشتہ کل لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل یعنی مہیلا آرکشن بل پیش کیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کے درمیان اس بل کو لے کر زبردست بحث ہوئی۔ مرکزی حکومت نے یعنی کیندر سرکار نے گزشتہ کل جمعرات کو لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پیش کیا، جو پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران ایک اہم قانون ساز قدم ہے۔ مرکزی وزیر برائے قانون و انصاف ارجن رام میگھوال نے مجوزہ آئین 131ویں ترمیم بل 2026 پیش کر کے بحث کا آغاز کیا، لیکن اپوزیشن نے اس کا زبردست وروध کیا۔ اپوزیشن خواتین بل لانے کے حق میں ہے، لیکن جس چالاکی کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کیندر سرکار مہیلاؤں کے آرکشن پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے، اس کے خلاف اپوزیشن نے زبردست آواز اٹھائی۔ گزشتہ کل لوک سبھا میں گوگوئی نے بھی حکومت پر سخت حملہ کیا اور خواتین ریزرویشن بل کو حد بندی سے جوڑنے پر گوگوئی نے سوالات کھڑے کیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اتر پردیش سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے سنبھل سے، کہ سرکاری زمین پر موجود عیدگاہ اور امام باڑے پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ میں مانتا ہوں کہ سرکاری زمین پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سرکاری زمین پر عیدگاہ ہی ہے؟ کیا سرکاری زمین پر صرف مسلمانوں کی ہی کوئی عبادت گاہ ہے؟ سرکاری زمین پر نہ جانے کتنے دوسرے دھرموں کے استھل ہے، وہاں پر بلڈوزر نہیں چلایا جا رہا ہے۔ بس حکومت کے اسی غداری مکاری پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ خیر، جب بلڈوزر چلایا گیا تو کارروائی کے دوران پورا علاقہ پولیس چھاونی میں تبدیل نظر آیا۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں انتظامیہ نے تجاوزات، جسے کہتے ہیں اتیکرمن، کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ کل بچولی گاؤں میں سرکاری زمین پر موجود عیدگاہ اور امام باڑے کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا۔ اس تعلق سے ایک سینئر افسر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ کارروائی محکمہ ریونیو کے احکامات کے تحت کی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، RSS کی 100 سالہ تقریبات، یعنی RSS کو 100 سال مکمل ہوئے، اس کو لے کر باقاعدہ بہت ساری تقریبات اور بڑے بڑے پروگرامز لیے جا رہے ہیں۔ اس پر سرکاری اشتہارات ہے، گورنمنٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اور اس پر گورنمنٹ نے 76.13 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ یہ RTI سے انکشاف ہوا ہے۔
यानी आरटीआई डालने के बाद पता चला कि आरएसएस की 100 साला तकरीबात पर सरकार ने 76 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। आखिर सरकार की क्या ये बाप लगते हैं? क्या मोहन भागवत इनका बाप लगता है? लगता है, मोहन भागवत इनका बाप लगता है। और मोहन भागवती के इशारे पर बीजेपी की सरकार चलती है, मुल्क की सरकार चलती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आरएसएस ये वो टोला है नफरती लोगों का जिसने हमारे तिरंगे को 50 साल तक, आधी सदी तक अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया। आरएसएस ये वो नफरती टोला है जिसका देश पर रत्ती बराबर भी हक नहीं है, क्योंकि इन्होंने आजादी और स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ बयानात दिए, इन्होंने मुखबिरी की, इन्होंने आजादी की जंग में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे नफरती टोले को खुश करने के लिए आरएसएस की 100 साला तकरीबात पर सरकार 76 लाख से ज्यादा खर्च कर रही है। आरटीआई इंकशाफात में यह बात सामने आई है। आइए नाज़रीन, फिर एक चौंकाने वाली बड़ी खबर। जी हां, बाबा बागेश्वर धाम को गैर मुल्की फंडिंग की इजाजत मिल गई। जोरदार तालियां बजाओ। जी हाँ, क्योंकि बाबा बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, बाबा बड़ी बड़ी स्कूलें बनाने वाले हैं, बाबा सेवा में खूब धन लुटाने वाले हैं, इसलिए बाहर से फंड आएगा उसकी उनको इजाजत मिल गई। जी हाँ, ऐसा नहीं है, बाबा कुछ नहीं करने वाले हैं। बाबा को सिर्फ इसलिए इजाजत मिली है क्योंकि बाबा ने बीजेपी का प्रचार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मरकजी वज़ारत दाखिला ने FCRA रजिस्ट्रेशन के तहत बाबा को मंजूरी दे दी है, यानी बाबा अब करोड़ों अरबों रुपये बाहर मुल्कों से ला सकते हैं और ले सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। जी हाँ, आप जानते हैं कि नोएडा में हजारों मजदूर सड़कों पर उतरकर पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए नजर आए। जी हाँ, सरकार किस तरीके से मार रही है और निजी कंपनियां भी किस तरीके से मजदूरों का खून चूस रही है, इसी को लेकर हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए, हिंसक हो गए, तोड़फोड़ की, पुलिस को भी नहीं बख्शा, पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। लेकिन अब खबरें आ रही है कि नोएडा में इस एहतजाजी तशद्दुद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कहीं से भी पाकिस्तान को जोड़ दो। पाकिस्तान से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का किरदार बताया जा रहा है। खैर, 62 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इंकशाफ किया है कि नोएडा में उजरत में तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे पर होने वाले मजदूर एहतजाज के दौरान तशद्दुद और बदअमनी फैलाने में मुबैना तौर पर पाकिस्तान से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, रियासत हरियाणा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया, और वो एक्शन ये कि क्रॉस वोटिंग करने पर 5 MLA को कांग्रेस ने मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा इंतखाबात में मुबैना क्रॉस वोटिंग के मामले पर हरियाणा के 5 विधायकों को फौरी तौर पर पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। यह कार्रवाई रियासती तादीबी कमेटी की सिफारिश और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद अमल में आई है। इसे कहते हैं कांग्रेस। क्या गद्दारी किसी ने की उसको सजा मिलती है, वरना दूसरी पार्टियों में आप देखो कि क्रॉस वोटिंग मेंबर कर भी डालते हैं, बड़े से बड़े करप्शन, बड़े से बड़े गद्दारी कर डालते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें निकाल कर नहीं फेंकती है, क्योंकि पार्टी के बड़े खुद अंदर से मिले हुए होते हैं। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में टीचर्स आंदोलन, असातिज़ा का एक बड़ा एहतजाज हुआ है। बताया जा रहा है कि तनख्वाहों की अदमे अदायगी, यानी तनख्वाह न मिलने पर, पेमेंट न मिलने पर हजारों असातिज़ा सड़कों पर उतर आए हैं। एक्चुअल में महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, और बीजेपी की सरकार जहां जहां बनी है
इलेक्शन को जीतने के लिए योजनाएं बांटती है, 10-10, 15-15 हजार अकाउंट्स में डालती है, इलेक्शन जीत जाती है। बीजेपी ने सरकारी खातों को पूरी तरीके से सरकारी अकाउंट्स को खाली कर दिया है और सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी के पास में टीचर्स को भी तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। महीनों से टीचर्स की भी तनख्वाहें रुकी हुई है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कल मुंबई में असातिज़ा ने बड़ा आंदोलन किया। हजारों असातिज़ा सड़कों पर एहतजाज करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई के मुंबरा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपको याद होगा मुंबरा में MIM की एक कारपोरेटर सहर शेख, उनका ये बोलना कैसा हराया, अब मुंबरा में चल रहा है कैसा फंसाया, क्योंकि मुंबरा में कैसा फंसाया की बहस शुरू हो गई है। क्योंकि कारपोरेटर सहर शेख जात सर्टिफिकेट केस में मुश्किल में आ गई है। जी हां, अब यही डायलॉग सहर शेख का कैसा हराया अब मुंबरा में जगह जगह बोला जा रहा है कैसा फंसाया, यानी मुंबरा में सहर शेख जात सर्टिफिकेट केस में फंस गई है और अब मुंबरा में जगह जगह ये सुनाई दे रहा है कैसा फंसाया। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि MIM ने जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर अब बंगाल में माहौल खराब कर रही है, MIM की हर जगह थू थू हो रही है और अब वो बेटी जिसने कैसा हराया बोलकर मुल्क में एक बहस शुरू कर दी थी, अब वो बेटी फंस गई है और लोग कह रहे हैं कि कैसा फंसाया, यानी जात सर्टिफिकेट मामले को लेकर वो ऐसे फंस गई है कि सहर शेख का ओहदा अब खतरे में पड़ गया है। तो अब सियासी हलकों में एक दूसरे को यही डायलॉग लेकर मजा ली जा रही है कैसा फंसाया, अब किसने फंसाया, कैसा फंसाया, धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली में मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। घर घर सर्वे के जरिए मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। कौमी राजधानी दारुल हुकूमत दिल्ली में मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो रहा है, जिसके तहत वसी पैमाने पर एदाद शुमार जमा करने का अमल आगाज पाएगा। ये अमल आइंदा वर्षों में हुकूमती मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी के लिए बुनियाद फराहम करेगा। हुक्काम के मुताबिक इस मरहले में शहर भर में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, जिसका मकसद रिहायशी ढांचे और बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक तफसीली मालूमात हासिल करना है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।